مانسون کے ایک اور طوفانی سپیل کا آغاز، پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں سیلاب کا خطرہ، فیصل آباد، جہلم، قصور میں دھواں دھار بارش، جلد تھل 1، راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسلا دھار بارش، باولپور، باول نگر، احمد پور شرقیہ، لیاقت پور، ظاہر پیر، راجن پور میں تیز بارش متوقع۔ این ڈی ایم اے نے بارش کا الرٹ جاری کر دیا۔ 24 سے 48 گھنٹے کے دوران بارش اور طوفانی ہوائیں وقفے سے جاری رہنے کا امکان۔ شدید بارش سے پہاڑی اور ندی نالے بھرنے اور لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ۔ تمام متعلقہ ادارے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل الرٹ۔ کراچی میں مانسون کے نئے سپیل کی انٹری، شہری قائد کے مختلف علاقوں میں برسات، گلشن اقبال، گلشن حدید، بحریہ ٹاؤن، نارتھ کراچی میں تیز بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہری قائد میں جمعرات تک وقفے سے موسلادھار بارش متوقع۔ بارش برسانے والا سسٹم پورے شہر پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ 9 اور 10 سپتمبر کو شہر میں شدید بارش متوقع۔ اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ، موجودہ سسٹم کے تحت طاقتور مانسون سپیل سندھ میں اثر انداز ہوگا۔ سندھ کے مختلف شہروں میں بھی کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش جاری۔ پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں، ستلج، راوی اور چناب کے سیلابی ریلے ہیڈ پنجن پہنچ گئے۔ ہیڈ پنجن پر پانی کا بہاؤ 4,89,000 کیوسک ریکارڈ۔ بند ٹوٹنے سے تحصیل علی پور کے وسیع علاقے زیر آب۔ پاک پتن، باول نگر اور بہاولپور سیلاب کی لپیٹ میں۔ ہریکے اور فیروز پور سے نیچے ہائی فلڈ الرٹ جاری۔ بھارتیائی کمشنر نے ہائی فلڈ الرٹ سے متعلق آگاہ کیا۔ وزارت آبی وسائل نے تمام چیف سیکرٹریز اور دیگر متعلقہ اداروں کو آگاہ کر دیا۔ چشتیہ میں دریائے ستلج بھر گیا، سیلابی پانی کے تیز بہاؤ کے باعث متعدد حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ پانی گھروں میں داخل، دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ پانی کا بہاؤ 3,11,000 کیوسک ریکارڈ۔ 140 کے قریب دیہات زیر آب آ گئے۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی تیار فصلیں دریا برد۔ پیر محل میں دریائے راوی کے سیلابی پانی نے تباہی مچا دی، متعدد دیہات ڈوب گئے، فصلیں تباہ، کئی گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔ مظفر گڑھ میں دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب، سینکڑوں موازات زیر آب، فصلیں تباہ۔ سیلاب سے حادثات میں 56 افراد جاں بحق، صوبے کے 4100 سے زائد معزہ جات، 42 لاکھ سے زائد افراد براہ راست متاثر، 20,14,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ وزیراعظم کا سیلاب میں نقل مکانی کرنے والوں کی بھرپور امداد کا حکم۔ شہباز شریف نے کہا کہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ رابطے اور تعاون کو مزید مربوط بنایا جائے۔ پاکستان مسلسل موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات کی لپیٹ میں ہے۔ پیش کی اطلاعات، مضبوط اور پائیدار انفراسٹرکچر اور ریسکیو اور امداد کا نظام مزید مربوط کرنے کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ وزیراعظم کا جلال پور پیر والا میں ریسکیو کشتی حادثے میں 5 افراد کی موت پر اظہار افسوس، اہل خانہ کے ساتھ اظہار ہمدردی۔ گجرات میں سیلابی صورتحال برقرار، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر گجرات میں سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات کا سلسلہ تیز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ڈسپوزل اسٹیشن کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی بروقت کارروائی نے ان علاقوں کی کلیئرنس کو یقینی بنایا۔ پنجاب کے بعد سیلابی ریلا سندھ پہنچ گیا۔ گڈو بیراج میں پانی کی آمد میں اضافہ ریکارڈ، درمیانے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ بڑھ کر 3,66,000 کیوسک ہو گیا۔ سکھر اور کوٹری پر نیچے درجے کا سیلاب۔ فلڈ فورکاسٹنگ لاہور کے مطابق دریائے چناب میں ہیڈ تریمو پر پانی کی آمد میں اضافہ، اونچے درجے کا سیلاب ہے، پانی کا بہاؤ بڑھ کر 5,26,000 کیوسک ہو گیا۔ ہیڈ پنجند پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 4,90,000 کیوسک ریکارڈ۔ ہیڈ سلیمانکی پر اونچے اور ہیڈ اسلام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی پر پانی کا بہاؤ 1,52,000 کیوسک ہو گیا۔ جو پریپریشن ہو سکتی ہے وہ ساری پریپریشن ہم نے کی ہوئی ہے۔ خیر و خیریت سے یہ جو ریلا ہے تقریباً 8 لاکھ کیوسک کا، اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ میرے خیال ہے میکسیمم اتنا ہی ہوگا، اس کو ہم گزار سکیں۔ حکومت سندھ سیلاب کا مقابلہ کرنے کو تیار، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ 8 لاکھ کیوسک پانی کا مقابلہ کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ 2 دن بعد گڈو پر سب سے زیادہ دباؤ ہوگا، ریلیف کیمپوں پر سامان پہنچا دیا گیا ہے، کشتیاں بھی موجود ہیں۔ امید ہے 8 لاکھ کیوسک کے ریلے کو بخیریت گزار لیں گے۔
5,43,000 क्यूसेक्स त्रिमू पे पानी हो चुका हुआ है, और जो पहला बड़ा रेला था उसने 5,55,000 की पीक यहाँ पे देखी थी। लेकिन हमें ये खदशा है कि अगले 12 से 18 घंटे में ये पिछले रेला से भी पीक ज़्यादा बढ़ेगी। पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डायरेक्टर जनरल पीडीएमए पंजाब इरफान अली काठिया कहते हैं, कल जलालपुर पीरवाला में अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसमें एक खातून समेत 3 बच्चे जामहक हुए। पंजाब में तीनों दरियाओं में पानी की सतह कम हो रही है। इस वक्त रिलीफ कैंपों में 60 से 70 हज़ार अफराद मौजूद हैं जिन्हें हर किस्म की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 56 हो चुकी है। गुजरात में बारिश का सिलसिला अभी जारी है। पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियां तेजी से जारी। झंग और करीबी इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए दूर दराज देहात में 2.8 टन राशन पहुंचाया गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल झंग सिटी और तहसील 18 हजारी में मेडिकल कैंप कायम। मरीजों को तिब्बी इमदाद की फराहमी जारी। पाक फौज के जवानों ने वली मोहम्मद डबकिला और बदहवाना में कश्तियों के जरिए दर्जनों अफराद और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। 1965 की पाक भारत जंग में आसमानों के बादशाहों का दबदबा किसी से पोशीदा नहीं। आज 7 सितंबर यौम फ़ज़ाइया के तौर पर मनाया जा रहा है। पाक फ़ज़ाइया के शहुदा को उनकी जुर्रत, पेशेवराना महारत और कुर्बानी पर ख़राज अक़ीदत। कराची में पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब फातिहा खानी की गई। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद कमांडिंग सदरन एयर कमांड मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान एयरफोर्स का यौम शहदा दिन का आगाज कुरान खानी से हुआ। जंगे 65 और 71 की जंगों के शहदा के लिए खुसूसी दुआएं। ISPR के मुताबिक एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब का इनेकाद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। कहा, यौम शहदा कुर्बानी हौसले और पेशेवराना सलाहियतों की अलामत है। पाकिस्तान एयरफोर्स तेजी से बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल में अपने मिशन पर पूरी यकसोई से कारबंद है। यौम फ़ज़ाइया पर सदर ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फ़ज़ाइया को ज़बरदस्त ख़राज तहसीन। 1965 की जंग से लेकर मार्का बुनियान मरसूस तक शुजाअत, पेशेवराना महारत, जदीद सलाहियतों और कौमी फ़ज़ाई हदूद के दिफा में बेमिसाल किरदार को सराहा। सदर ज़रदारी ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया की जदीद सलाहियतें कौमी दिफा की ज़मानत हैं। मार्का हक़ बुनियान मरसूस में फ़ैसला कुन किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाक फ़ज़ाइया पेशेवराना महारत में दुनिया के किसी भी एयरफोर्स से कम नहीं। पूरी कौम अपनी इस काबिल फ़ख्र क़ुव्वत के साथ शाना बशाना खड़ी है। चारों वज़राए आला का पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों को सलाम, शहुदा व ख़राज अक़ीदत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सदर ट्रंप के साथ करीबी ताल्लुक बन गया है और ये भारत के लिए सोचने का मकाम है। साबिक अमरीकी ब्रिगेडियर जनरल मार्क कमिट की बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, भारतीय गुरूर सदर ट्रंप के सामने जाहिर हो गया। इसी वजह से अमेरिका पाकिस्तान के ज्यादा करीब हो रहा है। भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की तिजारती जंग पर अमरीकी रवैये और भारतीय जज्बात के दरमियान खलीज वाज़ेह हो गई है। पाकिस्तान से अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाज़ों के इम्कानात रोशन। कई साल बाद अमरीकी सिविल एविएशन अथॉरिटी की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक अमरीकी टीम कल से पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का सेफ्टी ऑडिट शुरू करेगी। ऑडिट में कामयाबी पर पाकिस्तान से अमरीका के बराह रास्त परवाज़ों की बहाली हो जाएगी। फरीक के क्रिकेट सीरीज का सनसनीखेज फाइनल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। 76 रन पर पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। साहिबजादा फरहान से पर साई अयूब 17 रन बनाकर आउट हुए। सलमान मिर्जा की जगह सुफियान मुमकिन की टीम में वापसी हुई। पानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत कल होगी। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अर्जमंद केस की समाअत करेंगे। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजीद गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करवाए जाएंगे।
सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का लाहौर के जनरल अस्पताल में चेकअप। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में MRI की गई। जराये के मुताबिक 1 घंटे तक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में रहे नवाज शरीफ को पट्टों में दर्द की शिकायत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल और तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल। तवानाई की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म की पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील बिला रुकावट जारी रखने की हिदायत। सदर पाकिस्तान ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। बिल की मंजूरी के बाद ड्यूटीज 1 जुलाई 2020 से मौसर होंगी। बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर होने के बाद सदर को भेजा गया था। अक्टूबर 2022 में गवादर मंसूबों के पेशरफ्त इजलास में इस तरमीम पर फैसला किया गया था। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की अफगान कौंसलेट आमद। कौंसल जनरल और सिफारती अमले ने खैर मकदम किया। कुन्नड़ और नंगरहार जलजले में हलाकतों पर गवर्नर सिंध का इजहार अफसोस। मुतासरीन से हमदर्दी और ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में पाक अफगान तिजारत बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने ताज़ियती किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। कराची के इलाके मंगोपीट में कैश वैन में डकैती। CCTV फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। 5 डाकुओं ने कैश वैन को घेरे में ले लिया। डाकू वैन से रकम से भरा थैला निकाल कर फरार। मुलजिमान सिक्योरिटी गार्ड का असलहा भी हमरा ले गए। हॉक्स बे के साहिल पर एक और हादसा। पिकनिक मनाने के लिए जाने वाला नौजवान बेरहम लहरों की नजर हो गया। गुलिस्तान जौहर का रिहायशी 18 साल अली हैदर 4 दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए हॉक्स बे गया था। हादसा सुबह 7 बजे पेश आया। कराची में राशिद मिन्हास रोड निजी मॉल के करीब ट्रैफिक हादसा। एक शख्स महक, एक जख्मी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म का मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने का मंसूबा मुलतवी। इसराइली मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने मुत्तहिदा अरब अमारात की वार्निंग के बाद मगरबी किनारे के साइज से इल्हाक का फैसला वापस ले लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने नेतन्याहू पर जोर दिया है कि वो मगरबी किनारे के बड़े हिस्सों को जम करने के मंसूबे को तर्क कर दें। इस्राएली फौज के गजा पर हमले जारी। फजाई हमलों में बच्चों समेत मजीद 21 फलस्तीनी शहीद। इस्राएली तैयारों स्कूल, खैमों और घरों को निशाना बना रहे हैं। अल शेख रिजवान और अल रमल में घरों पर बमबारी की गई। गुज़श्ता 24 घंटों में इमदाद की मुतलाशी 31 अफराद शहीद किए गए। भूख से मजीद 5 अफराद जान की बाजी हार गए। गजा में 10 लाख अफराद जबरी बेदखली का शिकार हैं, जिनमें 5 लाख बच्चे भी हैं। बच्चों के लिए गजा में जीना मुश्किल हो गया है। सेव द चिल्ड्रन इदारे के मुताबिक गजा बच्चों के लिए खतरनाक हो चुका है। औसतन हर घंटे एक फलस्तीनी बच्चा शहीद हो रहा है। इसराइली मुहासरा तोड़ने के लिए फ्लोटिला गजा जाने को तैयार। ग्लोबल समूह फ्लोटिला ट्यूनिस पहुंच गया है। काफिला बुध के रोज गजा के लिए रवाना होगा। जहाज पर डॉक्टर्स, वकला, समाजी कारकुन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स शामिल हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी मौजूद हैं। गजा में इसराइली बर्बरियत ना रोकने के खिलाफ यमन से बड़ी कार्रवाई। इसराइल पर ड्रोन हमला। ड्रोन इसराइल के जनूब रमून एयरपोर्ट टर्मिनल से टकरा गया। 2 अफराद जख्मी। हमलों के बाद इसराइली एयरपोर्ट पर परवाज़े मौत तक। पाकिस्तानी खातून पुलिस ऑफिसर का शानदार एहसास। ASP शहरबानो नकवी एशिया सोसाइटी 21 नेक्स्ट जनरेशन फेलोशिप के लिए मुंतखब। एशिया 21 नेक्स्ट जनरेशन समेत इसी साल 5 ta 7 दिसंबर फिलिपाइन के शहर मैनिला में मुनक्किद होगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ASP शहरबानो नकवी को पाकिस्तान और पंजाब पुलिस का नाम रोशन करने पर मुबारकबाद। PCB ने पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान की ट्राई सीरीज का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान पहली बार T20 ट्राई सीरीज की मेजबानी करेगा। ट्राई सीरीज 17 ta 29 नवंबर रावलपिंडी और लाहौर में होगी। 17 नवंबर को पहला मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान रावलपिंडी में खेलेंगे। एशिया कप के आगाज में सिर्फ 2 रोज बाकी। मुत्तहिदा अरब अमारात में स्केड्यूल 8 टीमों में जंग होगी। हाई वोल्टेज टकरा 14 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा।
اور रवां साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण। पाकिस्तान में भी चांद ग्रहण का मुशाहिदा किया जा सकता है। रात 8:28 पर चांद की रोशनी मध्यम हुई। जुज़वी ग्रहण लगने का आगाज कुछ देर बाद होगा। मुकम्मल ग्रहण का आगाज 10:31 पर होगा। चांद ग्रहण 11:12 पर उरूज पर होगा। रात 1:55 पर चांद ग्रहण मुकम्मल इख्तिताम को पहुंच जाएगा।